now. So good evening, namaskar to everyone. On behalf of Walter Bushnell and Ulhasnagar Chemist Association, we welcome each and everyone who has joined us on Zoom and on Facebook for this live chemist webinar. I heartily welcome all our panelists today. And we are very, very lucky to have none other than Dr. Parveen Bhatia with us, who is a leading robotic bariatric surgeon associated with Gangaram Hospital and is also at Bhatia Global Hospital and Endosurgery Institute. हम सब जानते हैं that sir is a multifaceted man. अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए इतने बिजी शेड्यूल से भी सर मेक श्योर करते हैं टाइम निकालना. एंड सर इज वेरी मच पैशनेट अबाउट एक्सट्रीम स्पोर्ट्स like skydiving, paragliding, mountain climbing, and is also very much interested and penchant for jungle safari and wildlife photography. सर बहुत बहुत अच्छे स्पीकर हैं. ऑलरेडी वॉल्टर बुशल के साथ भी और काफ़ी अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी इस कोविड के टाइम में भी, बिफोर कोविड ऑल्सो, सर हैज़ गिवन सम एक्सीलेंट मोटिवेशनल टॉक्स, not only to the pharma professionals, but to our supply chain partners, to chemists also, to stockists also, and even to college students. Sir is totally a health enthusiast. It is always said that, to have a healthy life, we should have a healthy body. So, sir actually practices it, and you can see in this small video that even out of his busy schedule, he makes sure that he exercises daily. Another small video I have that sir इतने ज़्यादा health enthusiast हैं that not only these jumping jacks or walking, he also do a lot of dumbbells. So core tight करो, back straight. An inspiration. As you can see, these are the pictures of sir doing exercise. Apart from that, sir is also a great dancer. जब भी हॉलिडे पे जाते हैं या फ्री होते हैं, again to keep himself positive, his spouse positive, he also dances very well. And these are the few pictures of him being a leading laparoscopic surgeon of India, not only India but Asia, specialized in minimal access surgeries, having more than 36 years of experience. You can see the photograph of sir performing laparoscopic surgery and robotic surgery. So we heartily welcome you, sir. Thank you so much for taking out time and accepting our invite to be the speaker in this chemist webinar. सर के साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज मिस्टर ठाकुर बाचवानी जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑफ उल्लासनगर केमिस्ट एसोसिएशन. सो ठाकुर जी, आपको अभी हम स्वागत करते हैं इस केमिस्ट वेबिनार में. अपार्ट फ्रॉम दैट, वी हैव आवर इन पैनल आवर ZSM फ्रॉम बॉम्बे, मिस्टर विनोद सिंह, आवर RSM, मिस्टर ऑगस्टीन, and we are very lucky to have from our medical department Dr. Vishal Bahane, and also our marketing colleague Mr. Pradeep Prabhu. So सबसे पहले मैं ठाकुर जी को सेशन हैंड ओवर करना चाहूँगी. ठाकुर जी, प्लीज. थैंक यू मैडम. थैंक यू मैडम. गुड इवनिंग एवरीवन. आज 25 सितंबर वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है. मैं अपनी और उल्लासनगर केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से सभी फार्मासिस्ट फ्रेंड्स को शुभकामनाएं देता हूं. आज का जो सेमिनार वाल्टर बुशल द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें हमें मैसेज ये देना है कि हमें इस पेंडेमिक सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रहना है. तो मैडम, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए बोलूँगा क्योंकि मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है बोलने की, टू बी फ्रैंक. तो मैडम, सबसे पहले हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें भगवान का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए, और उसके बाद में
15 से 20 मिनट तक डेली हमें मेडिटेशन, योगा, हल्की फुल्की एक्सरसाइज घर पे ही करनी चाहिए। उसके बाद में 15 से 20 मिनट तक कम से कम अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिताने चाहिए। और थोड़ा टाइम हमें बच्चों के साथ भी गुजारना चाहिए, क्योंकि मैडम जो बच्चे हैं उनमें एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, तो वो हमें पूरे दिन पॉजिटिव रखने के काम आती है। और उसके आगे मैडम थोड़ा टाइम हमें अपनी जो हॉबीज़ हैं, किसी को सिंगिंग की है, किसी को कुकिंग की है, किसी को डांस की है, थोड़ा टाइम हमें उसमें भी देना चाहिए। और उसके बाद में मैडम देखिए, रात को जब भी हम सोते हैं तो सोने से पहले हमें कोई भी जो नेगेटिव बातें हैं वो नहीं लानी चाहिए मन में। और सोने से पहले कम से कम किसी भी स्पिरिचुअल गुरु की स्पीच हमें सुननी चाहिए 15 से 20 मिनट तक डेली। और हमें रात को ये सोच के सोना चाहिए कि आज हमने दिन भर में कौन से अच्छे काम किए हैं और कल हमें और कौन से अच्छे काम करने हैं। और सोने से पहले फिर भगवान का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कल के लिए। बस मैडम, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा और टाइम भी बहुत कम है। मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया को हैंडओवर करूँगा। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच। आपने कुछ ही शब्दों में काफी कुछ कह दिया। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। सर, मुझे बोलने की एक्चुअली में इतनी ये नहीं है प्रैक्टिस। मैं पहली बार ही इस पे वेबिनार पे आया हूँ, तभी तो ये मेरा पहला सेशन है, तो मैं ज़्यादा इसलिए बोल नहीं पाया हूँ। नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला। मुझे तो ये लगता है कि कुछ ही शब्दों में अगर बहुत सारा कुछ बयान कर सकते हैं तो वही सबसे बड़ी कारीगरी है। और इसमें जैसे कि आपने मुझे आगाह किया और सुबोही ने भी बताया कि आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है। यस सर। सबके लिए मैं आप सबको, मुंबई केमिस्ट एसोसिएशन को और सबको शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सर। और दूसरी बात, मैं शुरू आपके ही वाक्यों से शुरू करना चाहूंगा कि अगले 1 घंटे में मेरा ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई ऐसा एम नहीं है कि मैं कोई भाषण कर दूं, और मेरा एम ये है कि हम आपस में एक अच्छी इंटरेक्शन करें, सो दैट अल्टीमेटली मैं भी सीखूं, आप भी सीखो, सब सीखें। उसी में ही सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है। मैं अपने टेरेस गार्डन से लॉर्ड बुद्धा को सुबह शाम हमेशा प्रार्थना करता हूं कि ज़ेन अपने मन के अंदर एक शांति रहे। और वही तरीका है कि आज हम इस पेंडेमिक को आगे बहुत पॉजिटिव तरीके से बिता सकते हैं। मैं ग्रीटिंग्स लाता हूं गंगाराम हॉस्पिटल से, इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस मेटाबॉलिक एंड बेरियाट्रिक सर्जरी, और भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल एंड एंडो सर्जरी इंस्टीट्यूट से। मैं आज कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगा जो लेप्रोस्कोपी के बारे में या रोबोटिक सर्जरी के बारे में या मोटापे के बारे में या गॉल ब्लैडर सर्जरी या हर्निया सर्जरी जो मैं करता हूं उसके बारे में। मगर मैं ये जरूर आपसे आगाह करूंगा, आपसे इन्फॉर्म करूंगा कि ये टाइम जो क्राइसिस का टाइम है और वो वर्ल्ड ओवर क्राइसिस का टाइम है, उसको किस तरीके से हम पॉजिटिव तरीके में बदल सकते हैं। और इसके लिए बड़ा सिंपल सी सेंटेंस है कि इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द काम इन द क्योस। ये हम सब जानते हैं कि इस समय क्योस है और वो क्योस अभी भी बढ़ता चला जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में, जब जनवरी में ये शुरू हुआ था तो सारे वर्ल्ड में ये फैला, और उसके बाद लॉकडाउन हुआ, अनलॉकडाउन हुआ, मगर फिर भी अभी भी चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो या बाकी सारी स्टेट्स हो, तो इनमें और प्लस वर्ल्ड ओवर ये कोरोना वायरस बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके लिए
हमें ये सीखना पड़ेगा कि पहली चीज कि इसको मैं अपने तरीके से, पॉजिटिव तरीके से इस तरीके से प्रेजेंट करता हूं कि ये भगवान कोरोना है। भगवान कोरोना कैसे है? क्योंकि हम सब देख चुके थे कि हम एज ह्यूमंस ने काफी ज्यादा नेचर के साथ खिलवाड़ किया हुआ था। और वो खिलवाड़ भी क्या किया था कि जो इतनी एयर पॉल्यूशन बढ़ चुकी थी, जो नदियां इतनी खराब हो चुकी थी, गंगा कितनी मैली हो चुकी थी, और बाकी सारी चीजों में, और हम सब ने ये सोचना शुरू कर दिया था क्योंकि अब हमारे पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, न्यूक्लियर बम बनाने की ताकत है, तो इसका मतलब हम सुपर पावर बन गए। पर भगवान ने एक छोटे से छोटा पार्टिकल वायरस बना के और वायरस भेज के, या ह्यूमन क्रिएटेड है, चाइना क्रिएटेड है या नहीं क्रिएटेड है, बट एक वायरस पार्टिकल ने सबको एक किस्म से बराबरी पे ला के दिखा दिया। और वो बराबरी चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या इंडिया हो, सब में अल्टीमेटली सबको रियलाइज करा दिया कि हमारी हस्ती इतनी सी है और नेचर की हस्ती बहुत बड़ी है। ये हमें सबको सीखना पड़ेगा। और इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यही है कि हमें, जैसे आपने ठाकुर जी बहुत अच्छे वर्ड्स में कहा कि अपनी फैमिली के साथ समय बिताने का समय दिया। चाहे आप एज केमिस्ट एसोसिएशंस, केमिस्ट शॉप्स में हैं, या हम सर्जन्स, डॉक्टर्स, आप हॉस्पिटल्स में पेशेंट की सेवा कर रहे हैं, मगर अल्टीमेटली ये हम सब भूल चुके थे कि दूसरों को तो हम ऑक्सीजन दिए जा रहे थे, पर अपनी ऑक्सीजन का जरा भी ध्यान नहीं कर रहे थे। और अब हमें इस टाइम में, लॉकडाउन पीरियड में और पोस्ट लॉकडाउन या अनलॉक पीरियड में, ये हमें रियलाइज कर लेना चाहिए कि हमारा मी टाइम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मी टाइम का मतलब अपना टाइम, अपनी हेल्थ के लिए टाइम। हेल्थ इज द फर्स्ट वेल्थ, और अपनी हेल्थ पे अगर हम नहीं ध्यान देंगे, नहीं तवज्जो देंगे, तो बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। आप सब ने, हम सब ने ये देखा, चाहे वो इटली हो, चाहे वो बाकी सारी का न्यूयॉर्क हो या बाकी सारी जगहें हो, उनमें सबसे ज्यादा जो कोरोना वायरस की डेथ्स हुई हैं वो उन्हीं पेशेंट्स में हुई हैं जिनमें या तो मोटापा था, या डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और इस टाइप की कोमॉर्बिडीज थी, बहुत सारी बीमारियां थी। उनमें सबसे ज्यादा डेथ होने का रिजल्ट रहा है। और अगर हमारी एज 60 एंड अबव थी तो उसमें, या बाकी सारी बीमारियों के साथ, डेफिनेटली डेथ रेट ज्यादा था। तो इसके लिए मुझे लगता है कि भगवान कोरोना को हमें शुक्रगुजार होना चाहिए और हमें सोचना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि इन एवरी कैलेमिटी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। कहने का मतलब, जब हमें मौका मिला है कि अपने आप का एक रीडिफाइन किया जाए लाइफ को, और वो आइंस्टाइन ने भी बहुत अच्छा कहा था कि एडवर्सिटी इंट्रोड्यूसेस ए मैन टू हिमसेल्फ। तो मुझे लगता है कि ये अगर हम सीख जाएं इस पूरी कैलामिटी से कि हमें अपने आप को किस तरीके से अंदर झांकना है और अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव करना है, वो हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। और इस समय, जैसे सदगुरु, जैसे आपने कहा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा ठाकुर जी की रात के टाइम पे किसी स्पिरिचुअल गुरु को 15 मिनट के लिए सुनना बहुत जरूरी है। तो मैं आपकी बात को हमेशा फॉलो करता ही हूँ। इन जनरल मुझे नहीं मालूम था कि आपके भी विचार मिलते जुलते हैं कि सदगुरु को मैं या बाकी जो गुरु हैं उनको सुनता हूँ, तो उसमें भी ये कहा, सदगुरु ने बहुत अच्छा कहा कि आप ये मत सोचो कि कितना पैसा कमाया या कितना बिजनेस किया या कितना नहीं किया। आप 2020 में सिर्फ ये सोचो कि मैं बच के निकल आया। और अगर आप बच के निकल आए
अगर आपके अंदर कम से कम बीमारियां हैं और आपने पूरी प्रिकॉशन ली है, तो डेफिनेटली आप इस 2020 से आराम से कोरोना वायरस से निकल आएंगे। मगर अगर आपने अपने आप को नहीं ध्यान रखा, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं किया, तो बहुत सारे चैलेंजेस ऐड ऑन हो सकते हैं। मैं एक सिंपल शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि हम सब जानते हैं कि कितना ज्यादा महम बन चुका था और सारे वर्ल्ड में ये कोरोना वायरस फैल चुका है। मगर अगर हम छोटी छोटी प्रिकॉशन नहीं लेंगे, जैसे कि फेस मास्क लगाना, इसको मैं हमेशा इस तरीके से प्रेजेंट करता हूं, स्पेशली मैं अपने केमिस्ट भाइयों के लिए ये कहना चाहता हूं कि SMS, S is for social distance, M is for mask, and S is for sanitation and hand wash. अब अगर आपने ये छोटे से प्रिंसिपल्स, छोटे हैं मगर बहुत कीमती हैं, ये अगर प्रिंसिपल्स को अपना लिया, तो चांस काफी हद तक हम इस वायरस को दूर भगा देंगे और जीत जाएंगे। ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कुछ ना कुछ अपने लिए तो करना ही है, मगर एवरी मैन ओज समथिंग टू द वर्ल्ड आल्सो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आंसर ये है कि बार बार मैं ये कहूंगा कि अभी आपकी जो शॉप्स हैं उसके ऊपर पहला तो खुद अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करो कि अपने सारे वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि मास्क गर्दन पे लगाने के लिए नहीं है, मास्क नाक और मुंह कवर करने के लिए बनाया गया है, गर्दन को कवर करने के लिए, फैशन करने के लिए नहीं बनाया गया। मैं बहुत दुखी होकर ये कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी लीडर्स, पिछले दिनों में आप सब ने देखा, जितने भी लीडर्स या पॉलिटिकल लीडर्स बीमार हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए कि सारे इंडिया के अंदर या सारे वर्ल्ड के अंदर उनकी जो फोटोग्राफ्स हैं उनमें मास्क गर्दन पे लगे हुए हैं बनिस्बत की नाक और मुंह के ऊपर। ये वायरस बहुत ही आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे, एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है। तो इसके लिए हमें पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि मास्क को मुंह पे लगा के रखना है। और स्पेशली केमिस्ट फ्रेंड्स को मैं ये कहूंगा, क्योंकि हम सब एज हेल्थ केयर वर्कर्स एक्सपोज्ड हैं टू दिस वायरस, तो इसके लिए N95 मास्क लगाना जरूरी है। अगर N95 हमारे वर्कर्स भी और हम भी और सभी लोग N95 मास्क लगाएंगे, जिससे कि वायरस का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मुझे लगता है कि केमिस्ट शॉप पे, हॉस्पिटल्स में, हमारी ओपीडीज में, हमारे वार्ड्स के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं वो फॉलो करना लाजमी है। यूजुअली नॉर्मली हम सब देखते हैं कि ओवर क्राउडिंग हो जाती है और उसकी वजह से वायरस एक से दूसरे में फैलता है, कम्युनिटी स्प्रेड होता है और वायरस कहां से कहां तक, वो कहते हैं ना आपके बॉलीवुड स्टाइल में, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। तो अगर ये वायरस निकलेगा तो बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। इसलिए ये हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरों तक ये वायरस ना पहुंचने दें। और उसके लिए एज द ओनर्स ऑफ द केमिस्ट शॉप्स, as the owners of the hospitals, as the owners of the institutions, we should make sure कि हमारी वजह से, मेरी वजह से किसी और को ये कोरोना वायरस ना पहुंचे। तो उसके लिए S for social distancing, M for mask और S for sanitation। सैनिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हाथ जो है वो सैनिटाइज कर लिए, नहीं। सैनिटेशन का ये भी मतलब है कि आपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश करना है, बार बार वॉश करना है। और वॉश करने में, जैसे सब जानते हैं और सब ने टीवी देखा इतने महीनों तक, कि वॉश करने के लिए ये वाला सरफेस जो पामर सरफेस है उसको, और बैक वाला सरफेस, और ये डिजिट्स वाला जो सरफेस है अंदर वाला, इसको भी अच्छी तरह से वॉश करना है। कोई भी चीज को टच करने से बाद या पहले डेफिनेटली अपने हाथों को क्लीन करें। और ये हमारे, ये नहीं कि आज हम ये सीखे हैं, ये हमारे पूर्वज हमें सिखा गए थे।
कि ये छोटी छोटी चीजों को ये ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली महामारी से, बीमारी से दूर रहेंगे। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी, सुबोही को मालूम है कि मैं स्टोरी टेलिंग में विश्वास करता हूं और एक पॉजिटिव तरीके से जीने की कोशिश करता हूं। तो स्टोरी क्या थी कि जैसे कि हमने बताया कि थॉमस अल्वा एडिसन की सब जानते हैं कि उन्होंने बल्ब बनाया था। जब उन्होंने बल्ब बनाया तो दिसंबर 1914 में उनके फैक्ट्रीज, 6 फैक्ट्रीज को क्योंकि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के साथ एसोसिएटेड थी तो आग लग गई। और जब वो आग इतनी तेज, सुबह से जब आग लगी तो इतनी तेज आग फैलने लगी कि शाम तक उनका जो बेटा था, जो चार्ल्स बेटा था, वो बाहर खड़ा हुआ अपने फादर की, पापा की वेट कर रहा था कि मेरे फादर इस समय किस फैक्ट्री में है मुझे नहीं मालूम, पर फैक्ट्री के अंदर है। मगर उन्होंने जब शाम के टाइम पे जब बाहर निकले थॉमस अल्वा एडिसन, तो उन्होंने चार्ल्स को बुलाया, चार्ल्स बेटा इधर आओ। उसने कहा क्या हुआ? कह रहे हैं कि आप फटाफट भाग के घर जाओ और घर से मम्मी को भी बुला के लाओ। और वो चार्ल्स जो है वो अराउंड 22-25 साल का बेटा था, तो वो भी हैरान हो गया कि पापा इस समय हमारी 8 बिल्डिंग्स को आग लगी हुई है और इतने सारे फायर टेंडर आए हुए हैं और आपको अभी मम्मी की सूझ रही है। तो उसने कहा कि तुम्हारी मम्मी भी इतना ज्यादा कभी भी नहीं देख पाएगी जब 8 की 8 फैक्ट्रीज को आग लगी हुई है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि थॉमस अल्वा एडिसन जिसने इतना इन्वेंशन करी, इतनी सारी चीजें बनाई, इतने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बनाए, मगर उनके दिमाग में अभी भी स्टोइसिज्म थी। स्टोइसिज्म का मतलब है स्टोन लाइक कामनेस, स्टोन लाइक कामनेस, कि इतनी काम था माइंड कि अभी भी उसने अपने बेटे को कहा कि जाओ मम्मी को बुलाओ। और कैन यू इमेजिन, उसने ये एक सेंटेंस कहा कि देयर इज ए वैल्यू इन डिजास्टर, all our mistakes are burnt up, thank God we can start new। उनका अगले दिन सुबह जब सारी आग बुझ गई तो थॉमस अल्वा एडिसन ने सारे अपने वर्कर्स, हजारों के जो वर्कर्स जो बच गए थे क्योंकि फैक्ट्री से बाहर निकल आए थे, सब वर्कर्स को बुलाया और उन्होंने कहा कि आग तो लग गई, 8 फैक्ट्रियां खत्म हो गई, बिल्कुल जीरो हो गई, मगर हमें आज से ही फैक्ट्री बनाना शुरू करना है। और आपने सबसे पहले ए बी सी इन लोगों को बुलाया कि आप जाके पता करो कि हमारे को मशीनें कहां से मिल सकती। दूसरे को किसी को कहा आप जाके ये पता करो कि हमें ये लैंड और कितनी जल्दी और कहां मिल सकती है जिसमें हम दोबारा से फैक्ट्री बना सकें। और चौथे 5वें आदमी को बुलाया, उनको कहा कि ये पता करके आओ कि पैसा कहां से मिल सकता है। तो कहने का सिर्फ मतलब यह है कि दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविटी, कि अगर लाइफ के अंदर इतना बड़ा डिजास्टर हो भी गया तो भी अपनी पॉजिटिव अगर स्पिरिट होगी तो हम इस सब चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। और उसके लिए मुझे लगता है ये थॉमस अल्वा एडिसन की बहुत ही पॉजिटिव क्वालिटी थी कि ही वाज मेंटेनिंग ए स्टोन लाइक कामनेस। वो कहते हैं ना कि जैसे मैंने कहा ना कि क्योस में भी अगर काम रह सकते हैं वही हमारी सबसे बड़ी जीत है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस समय अपना, ठीक है पैसा कमाना भी जरूरी है, मगर अपनी लाइफ को बिताना जरूरी है। अपने बच्चों की सेहत, अपने पेरेंट्स की सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि अभी बचानी साहब ने कहा कि हमारे को कुछ समय अपने बच्चों के साथ देना चाहिए, जो भगवान ने हमें कहा कि नहीं, इस समय काफी समय अपनी फैमिली को देना चाहिए, पहली बात। मगर दूसरी बात, अपने पेरेंट्स को, और स्पेशली हमारी सबकी एज के हिसाब से, अगर हमारे पेरेंट्स थोड़े एल्डरली एज में हैं तो उनको इस समय मॉरल सपोर्ट की तो 100% जरूरत है, मगर हमारे को फिजिकल ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि हम सब, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो केमिस्ट शॉप में हैं, हम सब एक्सपोज्ड हैं कोरोना वायरस से। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें घर जाने पे डेफिनेटली
अच्छा सा बाथ लेना है और फिर उसके बाद पूरी प्रिकॉशन लेनी है और उसके बाद अपने पेरेंट्स को स्पेशली ये दूर रखना है फ्रॉम दी वायरस, सो दैट अल्टीमेटली हमारी ड्यूटी ये है कि इस पूरे फेज में हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए, और उसके बाद हमारी ड्यूटी है कि बाकी सबको नहीं होना चाहिए। और जैसे ये कहा कि सर जाए पर सैर ना जाए, अगर सुबह सुबह उठ के 5 बजे उठ के अगर आप सैर करते हैं और अपनी, मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं ठाकुर साहब की कि सिर्फ 20-25 मिनट नहीं, 45 मिनट से 1 घंटा सैर करना लाजमी है। चाहे वो सैर किसी टाइप की हो, चाहे वो अपने टेरेस गार्डन पे हो, चाहे वो किसी जगह पे, या अपने इवन अपनी फ्लोर्स पे भी सीढ़ियों में चढ़ना शुरू करें, सीढ़ियों से उतरता चला जाए, मन में एक्सक्यूजेस मत आने दें, वही सबसे बड़ी जीत है। तो सर जाए पर सैर ना जाए, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस कि हरकत में बरकत है, अगर हम हरकत करेंगे तो हमारी बरकत होगी। अगर हम अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे, चाहे वो डंबल से हो, चाहे वो जंपिंग जैक से हो, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज से हो, चाहे किसी भी एक्सरसाइज को करना जरूरी है, सो दैट हमारी हेल्थ ठीक रहे और उससे हम फिजिकली फिट रहें और मेंटली भी फिट रहें। क्योंकि इस स्टेज पे, ऐसे क्राइसिस में ये बहुत ही जरूरी है कि हमें फिजिकली और मेंटली और इमोशनली पॉजिटिव रहना है। अब इसके लिए कई बार मैंने देखा है कि काफी डार्कनेस है और वो कहते हैं ना, डोंट कर्स द डार्कनेस, लाइट ए कैंडल, कि अगर सारा टाइम अगर हम यही कहते रहेंगे ओ हो, जैसे टीवी, हमारे टीवी चैनल्स हैं, सारे टीवी चैनल्स में, कि सारा दिन जब शुरू हुआ था लॉकडाउन और जब अनलॉक हुआ था तो उस समय सिर्फ यही बताते रहे कि इसका इतना नंबर हो चुका है, इतनी डेथ्स हो चुकी हैं, इतने इन्फेक्शन हो चुके हैं, इतने, तो वो इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे थे। तो उसकी वजह से मुझे लगता है सबसे ज्यादा हम सब ने सीखना है कि टीवी के नेगेटिव न्यूज को बिल्कुल बंद कर दो। देन जब वो टीवी की ये लॉकडाउन पीरियड और नॉन लॉकडाउन पीरियड खत्म हुआ तो शुरू, और फिर उसके बाद कोरोना के बाद अब वो सुशांत सिंह रावत के पास, राजपूत के पास पहुंच गए और अब रिया की बारी है। तो व्हाट आई मीन टू से, ये नेगेटिव न्यूज को दूर रखें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। अगर आप किसी को मेहंदी लगाते हैं तो आपकी मेहंदी तो गाढ़ी हो ही जाएगी। कहने का सिर्फ मतलब है कि अगर आप पॉजिटिव हैं और अगर आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं तो हमेशा दूसरों को खुशियां ही बांटोगे। ये मत सोचो प्लीज, ये मत सोचो कि ये वर्ल्ड में पहली बार हुआ है कि पेंडेमिक हुआ है। हो सकता है कि हमारी लाइफ टाइम में ऐसा हुआ हो, मगर आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में, जो कि 1914 से 1918 में हुई थी, 22 मिलियन डेथ हुई थी। सिमिलरली जब स्पेनिश फ्लू हुआ था और 1914 से 1920 में, उस समय 50 मिलियन डेथ हुई थी। और उसी में ये हमने इंपॉर्टेंट लेसन सीखे थे कि मास्क पहनने हैं, दूर रहना है, हैंड वॉश करना है। ये उस समय 100 साल पहले की डिस्कवरीज हैं जो अभी तक चल रही हैं और अभी तक कहीं कीमती हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली मैं एक ही सेंटेंस में ये सारे क्राइसिस को सम अप करना चाहता हूं कि प्लीज ये मत सोचो कि ये पहली बार हुआ है और हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या होगा और इसमें डिप्रेशन में चले जाएं। नहीं, दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास। ये सिंपल भाषा में कुछ समय के लिए भगवान का, इस तरीके से मैं तो इस तरीके से लेता हूं कि भगवान का ये मैसेज है कि अपनी धरती को, अपनी नेचर को, अपनी फैमिली को, अपने नदियों को, अपने आसपास एयर को इतना साफ रखो, इतना अच्छा रखो कि सो दैट ये बीमारियां कम से कम फैले, और अपने आप को इतना डिसिप्लिन करो कि अल्टीमेटली वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी कीटाणु आपकी बॉडी को इफेक्ट ना कर पाए। तो इसके लिए आंसर एक ही है, दिस टू शैल पास, और इसमें नेगेटिविटी स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है।
अब हम कैसे ये करें कि हम इसमें एक क्राइसिस को पॉजिटिव तरीके से निकाल पाए। इसके लिए मैं एक छोटी स्टोरी फिर सुनाऊंगा, और वो बेसिकली आपने ये देखा कि माइकल जॉर्डन एक बास्केटबॉल प्लेयर थे, और उन्होंने ये कहा कि चेंज द वे द गेम इज प्लेड। कहने का सिर्फ मतलब है कि माइकल जॉर्डन एक बहुत ही पुअर फैमिली में, जैसे स्लम एरियाज होते हैं उसी टाइप के, न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन के पास वहां पैदा हुए। और जब वो 13 साल के थे तो इनके फादर ने, माइकल जॉर्डन के फादर ने, और स्पेशली मैं ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूं कि आप अपने बच्चों को ये स्टोरी सुनाएं, सो दैट अल्टीमेटली एक मोटिवेशन, एक पॉजिटिविटी ट्रेवल करे फैमिली के अंदर और वो पॉजिटिव रहे। तो उसमें क्या हुआ कि माइकल जॉर्डन को उसके फादर ने जब बुलाया और उन्होंने कहा कि ये बेटा, ये एक शर्ट देख रहे हो? कहता हाँ, ये तो बहुत पुरानी शर्ट है और मेरे हम 4 भाई हैं और चारों भाइयों ने ये पुरानी शर्ट पहनी है, पहन के ही पुरानी हुई है। तो उन्होंने कहा कि इसको बेचनी है। तो उसने कहा कि ये पुरानी शर्ट को बेचनी है, ये पुरानी शर्ट कैसे बेच सकता हूँ? कहते हैं नहीं, इसको जो है आपने किसी तरीके से भी बेचना है और इसमें इसको जो है $20 में ये बेच के आनी। तो उसने कहा ये तो हैरानी की बात है कि ये पुरानी शर्ट इतने सब हम यूज कर रहे हैं और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि $20 में बेचनी है। तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। और उन्होंने क्या किया कि माइकल जॉर्डन 13 साल का बच्चा था, स्लम एरिया में पैदा हुआ था। उसने क्या किया कि उनके पास उस समय सिर्फ धोने के लिए पानी था और साबुन था, और शर्ट को अच्छे से धोया, एक इंटेंशन थी, और धोया, और उसके बाद उसको प्रेस करने के लिए प्रेस नहीं थी, मगर लकड़ी के साथ उसने हाथों से अपने उस कपड़े को प्रेस किया, और मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशन के बाहर न्यूयॉर्क में खड़े होके जोर जोर से नीलामी एक किस्म से करें, शर्ट $20, शर्ट $20, शर्ट $20। और आप सोचो कि शाम होते होते किसी ने उनकी ये $20 की शर्ट खरीद ली, और वो जो माइकल जॉर्डन था भागा भागा घर पहुंचा, पापा 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 मैंने ये शर्ट बेच दी। तो वो पापा जो है बहुत ही खुश भी हुए, मगर पापा थोड़े से मेरे किस्म के थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये तूने शर्ट बेच दी है, अब ये ले एक और शर्ट, अब तू इसको जो है $100 में बेच गया। तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि 20 पहले तो पुरानी शर्ट, उसको आपने मुझे कहा $20 में बेच, और अब आप कह रहे हो कि इसको $100 में बेचो, ये कैसे बेच सकते हो? उसने कहा ले ले। और उसने क्या किया कि जो शर्ट ली उसको अच्छी तरह से धोया, उसको प्रेस किया, और न्यूयॉर्क में ब्रॉडवे जो सिनेमा घर है उसके, उसने सोचा 5-6 दिन तक सोचता रहा कि इसको मैं किस तरीके से इसकी वो कर सकता हूं। तो उसने कहा कि वहां पे ब्रॉडवे पे जो थिएटर है उसमें एक फिल्म एक्ट्रेस थी, फराह करके फिल्म एक्ट्रेस ने आना था प्रीमियर पे। तो ये बच्चा, 13 साल का बच्चा, उसने अपना दिमाग लगाया कि इसको मैं पॉजिटिव तरीके से कैसे कर सकता हूं। तो जाके फराह को कहा कि इज इट पॉसिबल टू गिव मी ऑटोग्राफ? उसने कहा हाँ, व्हाई नॉट। उसको लगा कि एक गरीब सा बच्चा, अगर मैं 13 साल का बच्चा और मैं मेरे से ऑटोग्राफ मांगना चाहता है, तो उसने कहा मैं दे सकती हूँ, ऐसा क्या है। उसने उस शर्ट को आगे कर दिया कि आप इसके ऊपर ऑटोग्राफ दे दीजिए। और कैन यू इमेजिन कि वो बच्चे ने ऑटोग्राफ करके सीधा वो ब्रॉडवे थिएटर से बाहर निकला और वहां पे जोर जोर से मचाना शुरू किया कि फराह जो एक्ट्रेस है उसकी ऑटोग्राफ शर्ट मैं नीलामी कर रहा हूँ, $100, $150, $200, इस तरीके से उसने एक किस्म से ऑक्शन लगानी शुरू करी। आप इमेजिन नहीं कर सकते, उसमें $1200 की वो शर्ट बेची, $1200 की। कहने का मतलब ठाकुर साहब, आप क्या समझते हैं इस स्टोरी से क्या मैसेज मिलता है कि वही माइकल जॉर्डन जिसने एक $20 की शर्ट, $0 की शर्ट थी, उसको 20 में बेचा, 20 से $1200 में बेचा, और उसके बाद ये वर्ल्ड का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बना, और उसने इतनी सारी गेम्स खेली और हमेशा उसने अपना बेस्ट दिया। तो इस पूरी स्टोरी से आपको क्या लगता है कि हमें क्या लेसन मिलता है जो हमें अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए? ठाकुर साहब।
अनम्यूट करो और बताओ। आपको अनम्यूट करना होगा, अपने आप को अनम्यूट। अनम्यूट कर लीजिए जो माइक का साइन। हाँ जी, ठाकुर जी, यस। सर पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी, यस, वेरी गुड। अगर पॉजिटिव है तो सब हो सकता है सर। सब हो सकता है। कहने का सिर्फ मतलब यह है कि इसमें सिंपल भाषा में, जैसे ठाकुर जी ने कहा स्टे पॉजिटिव, जैसे इसमें सिर्फ उन्होंने ये सीखा वैल्यू एडिशन कैसे करनी। कैन यू इमेजिन, उनके फादर ने, माइकल जॉर्डन के फादर ने उनसे पूछा, यही क्वेश्चन पूछा जो मैं आपसे पूछ रहा था, कि क्या सीखा आपने इस पूरी स्टोरी में। तो उन्होंने कहा कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। उसने कहा ये तो हर कोई जानता है कि जहां पे विल होगी वहां पे रास्ता मिल ही जाएगा। तो उसने कहा नहीं, इसमें आपने ये सीखना है एज ए पेरेंट, एज ए फादर। अपने बेटे को उन्होंने 13 साल की उम्र में सिखाया कि अगर आप एक नॉन लिविंग शर्ट को इतनी वैल्यू एडिशन कर सकते हो कि आपने अच्छी तरह से धोया, उसको अच्छी तरह से प्रेस करी, उसके ऊपर दिमाग लगाया और दिमाग लगा के उसको एक एक्ट्रेस से ऑटोग्राफ कराया, तो उसकी कितनी सारी वैल्यू एडिशन कर दी। तो क्यों ना तुम अपनी लाइफ को इस तरीके से बना डालो कि हमेशा एक वैल्यू एडिशन करो। और अगर आप ये वैल्यू एडिशन करोगे तो आप एक डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा स्पेशली आप सब से, आप अपने बच्चों से भी यही कहें कि किस तरीके से हमें वैल्यू एडिशन करनी है पहले अपनी लाइफ को। और अगर लाइफ इजंट अबाउट फाइंडिंग अबाउट योरसेल्फ, इट इज अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ। आई थिंक ये मैसेज देना बहुत जरूरी है कि हमें तो अपनी लाइफ को अपने आप क्रिएट करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और अगर हम अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो ही हम डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। और अगर हम अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली क्राइसिस के टाइम और ज्यादा मुश्किल में फंस सकते हैं। तो नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखें, पॉजिटिव रहें, सेहत अपनी ध्यान रखें, बच्चों को अपना ध्यान रखें। और एक और स्टोरी, मैं छोटी स्टोरी सुना के और उसके बाद आप सबके क्वेश्चंस लेने को लिए तैयार हो जाऊंगा। क्यों कि उसमें ये स्टोरी क्या थी कि एक, जैसे कि मुंबई में पानी आता है, बारिश आती है, खूब सारी बारिश आती है और खूब सारी तूफान सा आता है। तो इसी तरीके से अंटार्कटिक सी के पास ही एक किसी का फार्म हाउस था। और वो फार्म हाउस था तो उसमें वो हमेशा एडवर्टाइजमेंट देते थे कि मुझे एक लड़का चाहिए, वर्कर चाहिए, जो मेरे फार्म हाउस पे बाकी जो सामान है, मेरे पशु हैं, मेरी साइकिल है, मेरा उनका ध्यान रख सके। और वो होता क्या था कि स्टॉर्म आता था और वो बहुत तेजी से स्टॉर्म आता था। तो कुछ लोगों ने नौकरी करी, मगर कुछ लोग नौकरी करने के बाद जल्दी से उस फार्म को छोड़ के चले जाते थे। तो ये भी मालिक जो था वो भी थोड़ा सा परेशान थे कि इतना अब मैं कैसे इसकी रक्षा करूं। तो इन्होंने फिर एक बार एडवर्टाइजमेंट दी। तो एक यंग आदमी आया और उसने कहा कि यस, मैं आपके यहाँ पे नौकरी करने को तैयार हूँ। उसने कहा कैसे? कहता है कि आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। उसने कहा, मालिक ने कहा कि मुझे इसका मतलब तो नहीं समझ आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर फिर भी चलो मैं आपको नौकरी रख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उनसे पहले कई सारे वर्कर्स आए थे और कई सारे वर्कर चले गए थे। तो इन्होंने कहा चलो इनको भी रख के देख लेते हैं। तो उन्होंने उस वर्कर को रख लिया और एज लक वुड हैव इट, 8वें दिन, नौकरी के 8वें दिन ही बहुत तेजी से अंटार्कटिक सी में स्टॉर्म आया। जब वो स्टॉर्म आया तो इन्होंने भागे, मालिक जो है वो उठे रात को और उन्होंने जाके इस वर्कर को उठाया, उठो उठो जल्दी करो, बाहर स्टॉर्म आ रहा है, स्टॉर्म आने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है। उसने कहा सर, जब मेरे को आपने नौकरी पे रखा था ना, तो मैंने आपको एक सेंटेंस कहा। मैंने कहा क्या? कि आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। तो कहते हैं कि हाँ ये तो कहा तो था। तो कहता है कि आप मेरे को सोने दो, आप स्टॉर्म आने दो, जो भी होता है मैं सो रहा हूँ। तो मालिक को बुरा भी लगा, मगर ऑब्वियसली उस समय इतना समय नहीं था कि वो कुछ कर पाए। तो मालिक बाहर गए
और जब अपने फार्म की तरफ देखा तो वो हैरान हो गए कि जो कैटल थे वो सारी ठीक जगह पे बंधे हुए थे, जो साइकिल वगैरह थी वो सारी ठीक जगह पे तारप्लिन से कवर्ड थी, और जो बाकी मटेरियल भी था वो हर जगह पे यथा योग्य जहां पे होना चाहिए था वहां पे प्रिजर्व था, वहां पे बंधा हुआ था कि अगर रात को स्टॉर्म आ भी जाएगा तो भी मुझे कोई चिंता नहीं हो, मुझे कोई एक इरिटेशन ना हो कि मुझे अभी जल्दी जल्दी स्टॉर्म को फेस करना है। तो आई थिंक मैं सुबह ही आपसे पूछना चाहूंगा कि इस स्टोरी से आप क्या लेसन लेती हो? I think so proactiveness. Right. I mean the ability to prepare in advance. Very good. That's what I done. Good. That हमें last minute का wait नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। हमें advance में planning करके चलनी चाहिए। वेरी गुड। तो इसके लिए मेरा आंसर बड़ा सिंपल है कि नेवर रिपेंट एट द 11th hour, यू मे डाई एट 10:30। नेवर रिपेंट एट 11th hour, यू मे डाई एट 10:30। कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने जो क्राइसिस आया है, अगर मान लो हम सबकी लाइफ में ये क्राइसिस आया है, तो आप सब ने देखा, ठाकुर साहब आपने तो कहा कि मैं पहली बार ये वेबिनार कर रहा हूं, पर ये आप सब ने देखा कि चेंज द वे द गेम इज प्लेड, कि अब इस समय अगर हम केमिस्ट, एज ए केमिस्ट ऑल्सो, एज वॉल्टर बुशनेल कंपनी ऑल्सो, एज डॉक्टर्स ऑल्सो, एज स्टूडेंट्स ऑल्सो, अगर हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। कैन यू इमेजिन कि अब हमारे सब के बच्चे स्कूलों में जो पढ़ते हैं या बाकी कॉलेजेस में या जॉब भी करते हैं, मोर और लेस दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। तो कहने का मतलब है कि चेंज द वे द गेम इज प्लेड। आप अपने आप को इतना इक्विप करो कि आप अपना सारा बिजनेस अगर ई बिजनेस कर दोगे तो डेफिनेटली उससे, और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जैसे कि मेरी सुबह ही ने वीडियो दिखाई सुबह एक्सरसाइज करते हुए, एक मेरा जिम ट्रेनर है और वो मेरे रोज सुबह मेरे पास अभी भी आते हैं और सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ और उसके बाद सारा दिन ऑपरेशन करता हूँ और अभी सीधा ऑपरेशन थिएटर से भागता हुआ आ रहा हूँ आपके वेबिनार के लिए। मगर उसमें ये जब मैंने उनसे कहा कि आप कैसे करोगे कि आप बाकी जगहों पे तो जा नहीं पाओगे, यू आर ए जिम ट्रेनर और इस समय लॉकडाउन पीरियड है और सब जगह बहुत ही मुश्किल और यू नेवर नो कि इन्फेक्शन कैसे हो सकता है और किससे हो सकता है। तो देन आई पुश्ड हिम कि आप ऑनलाइन जूम पे ये एक्सरसाइज सिखाओ या ट्रेनिंग दो लोगों को, और वो बड़े रेजिस्टेंट थी कि नहीं सर ऐसा होता नहीं, जूम पे कैसे कर सकते हैं, जूम पे कैसे होगा, ऑनलाइन कैसे होगा, कंप्यूटर पे सीख के कैसे करेंगे। Can you imagine every day he thanks me so much कि सर आप इमेजिन नहीं कर सकते, जो मैं सिर्फ 10 लोगों के साथ फिजिकल ट्रेनिंग कराता था, इस समय मेरे पास 30 लोग हो चुके हैं और कोई कैलिफोर्निया में है तो कोई सिएटल में है तो कोई सिंगापुर में है तो कोई दुबई में है, और उनसे चार्जेस ऑनलाइन टीचिंग के मैं उतना ही ले रहा हूं जो मैं फिजिकली लेता था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास इतना सारा क्लाइंट्स हैं कि मैं उनको टाइम किस तरीके से दूं, ये मुझे सीखना पड़ रहा है। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है, आप सब से ZSMs से बाकी सबसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को वैल्यू एडिशन करें, अपने आप को चेंज, अपने आप को ऑनलाइन बनाने की कोशिश करें, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें, और डेफिनेटली इट इज गोइंग टू चेंज द वे द गेम इज प्लेड। इसके लिए मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन बिजनेस इंक्रीज करें, पेशेंट्स को इतना इंटरेक्शन करें कि उनको भी अच्छा लगे कि हम घर बैठे बैठे मोबाइल फोन से ऑर्डर करते हैं और हमारे घर में मेडिसिन डिलीवर हो रही है और प्रिस्क्रिप्शन। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि ये बिजनेस को इंक्रीज करने का यही तरीका है, स्टेइंग पॉजिटिव वन, एंड देन अपनी सेहत का ध्यान रखें। मुझे लगता है कि मेरे पास ठाकुर जी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं
पर मैं स्टोरीज के माध्यम से अब आपको नहीं इतना वो करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप सबके मन में, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनके मन में कोविड रिलेटेड या कोविड एरा रिलेटेड कोई भी मन में क्वेश्चंस हैं, वो मुझसे पूछ सकते हैं, सो दैट अल्टीमेटली ऑल ऑफ अस आर लर्नर्स। पर मैं दोबारा एक ही सेंटेंस कहूंगा, 1 मिलियन डेथ्स इज ए स्टैटिस्टिक्स। ये आंकड़े हैं। अगर 1 मिलियन डेथ हो गई या 1.1 मिलियन डेथ हो गई या 2 मिलियन डेथ हो गई, वो आंकड़े हैं, मगर 1 डेथ इज ए ट्रेजेडी। ये बहुत ही गहरी सोच वाली सोच है कि हम ये अखबारों में, न्यूज़पेपर, इसमें टीवी चैनल्स में सब जगह देखते हैं कि इतने मिलियन डेथ हो गई, इतने इन्फेक्शन हो गए, इतने सबको हो गया। वो एक स्टैटिस्टिक्स है, मगर हमारे घर में जब वो वायरस घुस जाता है, जब वो हमारे किसी क्लोज सर्जन को, क्लोज डॉक्टर को, क्लोज हेल्थ केयर वर्कर को इफेक्ट करता है, और उसकी वजह से हम सब जानते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 580 डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है ऑल ओवर इंडिया। इटली में बहुत सारे डॉक्टर्स की डेथ हुई, या बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स की डेथ हो चुकी है। तो उसके लिए मेरी आप सब से प्रार्थना है, आप सब से रिक्वेस्ट है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, stay positive, stay with social distance, then only we will be able to make a difference. ये जितनी हमारी सबकी requirements हैं पैसे की, वो सब पूरी हो रही हैं। वो भगवान को पता है कि जितना जितना जिसको देना है वो देगा ही देगा। उसमें आप, मुझे लगता है कि इस कंपटीशन से, इस सर्कल से बाहर निकलें और अपनी सेहत ठीक रखें। जग चंग, सेहत है, जान है तो जहान है। अगर हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा, और अगर सेहत नहीं ठीक रहेगी तो सब कुछ यहीं का रखा रह जाए। इसीलिए अपनी फैमिली की सेहत का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, फिजिकल फिटनेस रखें, मेंटल फिटनेस रखें, पॉजिटिव रहें और डिफरेंस क्रिएट करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं अब सुबोही और ठाकुर जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, जिसको स्क्रीन शेयर हटा, जो भी मन में जिसके क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछें, सो दैट अल्टीमेटली हम सब का फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। It was indeed a very, very nice and learning session, sir. Thank you so much. Like always, you have been really inspiring. In spite of the all-day work, you were very fresh, very active, and the josh in your voice is unmatchable. So, Dr. Vishal, would you like to add anything here? डेफिनेटली सर, इट वाज अ वेरी मोटिवेटिंग लेक्चर, और मैं आपका लेक्चर फेसबुक पे अपने बेटे को भी सुनाता हूँ कि दिस इज द स्टोरी विच यू शुड लिसन। एंड सर, जो बात आपने कही कि यू शुड चेंज राइट नाउ, और ये इसका एग्जांपल एक्चुअली हमने पहले भी देखा है, जब वी वर हैविंग दिस नोट ट्रांजैक्शंस करेंसी, बट जब इन नवंबर ईयर एट 17 में जब वो नोट बंदी हुई थी, तब हमको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं आते थे। बट आफ्टर अ डे और टू में जब ग्रीन ग्रोसरी फ्रूट्स लेने गया, तो मैंने देखा कि इवन वेजिटेबल शॉप, ग्रोसरी शॉप, एवरीवन वेर हैविंग पेटीएम, और लोग उस शॉप में जाते थे जहां पे पेटीएम या अदर थिंग्स होते थे, उस जगह पे नहीं जाते थे जहां पे वो नहीं होता था। तो इट इज द टाइम टू चेंज राइट नाउ। Second thing, it is the time to change for the children's also right now, because we were, as a parents, we were very hesitant to give tablets or laptops to children. But when we have seen this period, and when we have seen given this tablet and laptop to children, we have seen that initially we were finding difficulties in adapting the child. But to climb the first stair is difficult, but next stairs you can climb easily. And with time we have seen that they had themselves adapt, and they now themselves doing the classes. Class 1 or class 2, they themselves are doing their classes online, which they have also learned. When children can learn, then we can also change. Very good डॉक्टर विशाल, बिल्कुल ठीक आपने कहा। मैं इसी के लिए ना एक छोटा सा सेंटेंस यूज करता हूँ, let the child within you not die. Let the child within you not die. कहने का मतलब हम सब के अंदर एक बच्चा है, और वो बच्चे को अगर हम मरने देंगे
तो फिर वो नई जिंदगी नहीं जी पाएंगे। तो जैसे आपने देखा बच्चा क्या करता है कि कंप्यूटर पे आते ही वो हर की टैब को छेड़ना शुरू कर देगा और उसको डर नहीं होता कि कुछ डिलीट हो जाएगा, कुछ फाइल निकल जाएगी, कंप्यूटर क्रैश कर जाएगा, क्रैश करेगा तो उसके बाप का जाएगा, मेरा क्या जाएगा। तो व्हाट आई मीन टू से, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। सिमिलरली वी शुड आल्सो बी ओपन टू लर्निंग। और जितना हम आपस में ये स्पेशली हमारी एज वाले ये सोच लेंगे कि मुझे भी बच्चे को, अपने बच्चे को, अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखना है। जब डांस करने का मौका मिले तो डांस करना है, जब मुझे गाना गाना है तो गाना गाना है, और जब मुझे कंप्यूटर सीखना है तो सीखना ही है, ऑनलाइन करना है तो करना है। अगर हम ये सारे बिजनेस को या अपनी लाइफ को चेंज करने की एक प्रवृत्ति बना लेंगे, पॉजिटिव तरीके से जी पाएंगे, डेफिनेटली वी कैन मेक अ डिफरेंस एंड देन यू विल एंजॉय। अभी सिंपल भाषा में मैं आपकी ही बात को दोहराता हूँ कि अब इतने महीनों में, तो पिछले 8-9 महीनों में इतने सारे वेबिनार हो रहे हैं, इतने सारे डॉक्टर्स, या मैं फॉर एग्जांपल अपना एग्जांपल बताऊं, मैं वर्ल्ड ओवर ट्रैवल करता था। कभी सिंगापुर में लेक्चर था, तो कभी अमेरिका में, तो कभी इंडिया में, तो कभी इंडिया के भी हर कॉर्नर में मैं लेक्चर करता था या वर्कशॉप करता था। मगर आज मैं उनसे भी ज्यादा लेक्चर कर पा रहा हूं बिकॉज ऑफ जूम, बिकॉज ऑफ वेबिनार्स। तो अल्टीमेटली अगर हम सारे डॉक्टर्स एक दूसरे के विचार सुन पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं और आगे पेशेंट का एडवांटेज दे पा रहे हैं, इससे बड़ा नियामत क्या होगा। तो हमें पहले बार जब मैंने भी जूम यूज किया करना शुरू किया, मुझे भी इनिबिशन हुई कि कैसे कनेक्ट होगा, पता नहीं क्या होगा, कहीं क्रैश तो नहीं कर जाएगा। मगर जैसे आज ठाकुर साहब को थोड़ी सी हो रही थी, मगर नहीं, हमें पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव तरीके से एक अपने अंदर के बच्चे की जिज्ञासा को हमेशा आगे प्रवृत्त करना है, सो दैट हम लर्न करते रहें, सीखते रहें और पॉजिटिव तरीके से जिए। और अगेन एंड अगेन केमिस्ट साहब को, सबको मैं कहूंगा कि बीमारियां जाने वाली नहीं, बीमारियां तो रहेंगी, इंसान रहेगा, बीमारियां रहेंगी, मगर अल्टीमेटली अगर हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन कर लेंगे तो सबकी बीमारियों को डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। गुड, वेरी गुड डॉक्टर विशाल, डॉक्टर मिस्टर ठाकुर। यस, और कोई सर एक चीज जो मैंने देखी, ये कोविड से यहाँ काफी स्टिग्मा मैंने देखा है कि काफी जगह पे लोग हेसिटेट करते हैं कि भाई इस बिल्डिंग में या इस ऑफिस में कहीं हो गया है, so we should not go to that place. Second, a person get affected, even they come negative report, but they try to maintain that distance. We should and some awareness programs are there available, but itna is pe we are thinking to do something to remove this stigma, which is the need of an hour, right? Very good thought. मगर मेरे दूसरा विचार ये है कि यस, इतना स्टिग्मा नहीं होना चाहिए था, बट इस समय ये बात पक्की है कि डर होना भी जरूरी है। अगर हमें डर नहीं होगा, और हम सब ने देखा कि जैसे ही ये जिम खुलने शुरू हुए, जैसे ही ये मेट्रोस खुलनी शुरू हुई, लोगों ने एक, जैसे होता है ना स्कूल के बच्चे होते हैं, और जैसे ही घंटी बजती है तो सारे के सारे गेट की तरफ, बसों की तरफ भागते हैं कि अब तो स्कूल की छुट्टी हो गई, अब ऐसी तैसी। वो मुझे लगता है उसकी वजह से स्पेशली दिल्ली में भी और बॉम्बे में भी और हर जगह पे हम देख ही रहे हैं कि नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो वायरस से संक्रमित लोग हैं उनके भी नंबर्स बढ़ रहे हैं और डेथ्स के रेट नंबर भी बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है कि यस, स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, मगर प्रिकॉशन होनी चाहिए, डिसिप्लिन पूरा होना चाहिए। और अगर कोई आपकी फैमिली के अंदर या कोई फैक्ट्री के अंदर या केमिस्ट शॉप के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर कोई अगर वायरस से संक्रमित हो चुका है, तो उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरों को ना दे। उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को वो सेल्फ आइसोलेशन पे डाले। और थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट इसमें समय लूंगा कि अप्रॉक्सीमेटली 95% जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, इस समय भी हो रहे हैं, उनके मन में यही आना चाहिए कि ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। पॉजिटिव रहो कि ठीक हो जाएंगे, मगर सेल्फ आइसोलेशन करना जरूरी है, क्वारंटाइन करना जरूरी है कि दूसरों को ना इन्फेक्ट करें। और कुछ 5% लोग होंगे जिनको डॉक्टर्स की अल्टीमेटली जरूरत पड़ेगी या एडमिशन की जरूरत पड़ेगी,
और अगर उनको साथ में बीमारियां हैं, जैसे कि मैंने बताया डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, स्मोकिंग, ये अगर सारी चीजों की अगर वो रूट्स में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वेंटिलेशन पे या सांस में आने में दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए हमें प्रिकॉशन लेना जरूरी है। और अभी भी आप सब इस बारे में बिल्कुल वो हो जाओ कि वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं आने वाली। हम ये सोचते रहे कि वैक्सीन आ जाएगी, हम सबको 7 बिलियन पीपल विल गेट दी वैक्सीन और उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं होएगा। ये हम तो हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी तो अतिथि को देवो भव कहता है कि अतिथि आए हैं, उनको साथ में हमारे रहना ही है। तो अगर हमारे साथ ये कोरोना जी ने रहना है तो इसको हमें जीने का तरीका सीखना पड़ेगा और अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा और ये पॉजिटिव रहना पड़ेगा कि अगर इन्फेक्शन हो भी गया है तो ठीक हो जाएगा। थोड़े थोड़े प्रिकॉशन लेने हैं। अगर मान लो 100 से ऊपर टेम्परेचर है तो डोलो 650 या क्रोसिन की गोली लेनी है। और अगर सांस में या गले में कोई तकलीफ है तो डेफिनेटली डॉक्टर को ऑनलाइन कांटेक्ट करें। मगर अभी इस समय पूरी कोशिश करें कि अननेसेसरी हॉस्पिटल में भी मत जाएं, अननेसेसरली बाकी जगहों के भी लोगों के भी एक्सपोजर में मत आए, जिससे कि ये वायरस रेप्लिकेट कर सके और ये बढ़ता चला जाए। तो ये प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। गुड। डॉक्टर साहब, जिसको एक बार कोविड हो गया तो दोबारा उसको नहीं होगा ऐसा लोग मान के चलते हैं, वो लोग कुछ प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, तो उनको हम कैसे ये करें हैंडल? उनको बिल्कुल सिंपल भावना मेरी ये है, ये अनसर्टिनिटी जो है ना, ये सबके मन में है। ये कोई, मैं आज भी बड़े बड़े ही जिसको है ना कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि चाहे वो हमारी नेशनल रिसर्च ICMR है या इंटरनेशनल WHO है या बाकी जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, सब की समझ में कुछ भी नहीं आता। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा कि अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो उससे इम्यूनिटी 100% हो गई कि दोबारा नहीं होएगा। लोगों ने एंटीबॉडीज टेस्ट करा के देख लिया, कुछ महीने तक तो एंटीबॉडी रही और उसके बाद एंटीबॉडी हमेशा के लिए खत्म हो गई। और अब पिछले कुछ महीनों में सब हम न्यूज पढ़ते हैं कि डॉक्टर्स को भी जिनको पॉजिटिव हुआ था फिर नेगेटिव हुआ और फिर दोबारा से इन्फेक्शन हो गया। अब सिमिलरली हमारे दिल्ली के ही डिप्टी CM है, उनको पहले इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन ठीक हुआ, अब उनको डेंगू हो गया। कहने का मतलब है ये मत सोचो कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आ गई है एक बार इन्फेक्शन होने से। कोई इम्यूनिटी नहीं आई, कोई हार्ड इम्यूनिटी नहीं आई। इसलिए प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखें। अपनी सेहत का तो ध्यान रख ही रहे हैं, प्लस दूसरों की सेहत का ध्यान रखें। अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव हो भी गए हैं तो भी दोबारा से एक्सपोजर पे इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें इम्यून नहीं। तो इसलिए प्लीज अपना ध्यान रखें और अपने फैमिली का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय तो मैंने जैसे कहा, इस समय तो हमें सबको जीवित रहना ही सबसे बड़ा आंसर है और कोई आंसर नहीं। तो अगर हम दूसरों को इन्फेक्ट कर देंगे और फिर साथ में अपने आप को भी वो नुकसान पहुंचाएंगे, वो गलत बात है। Right, sir. Sir, actually there are many questions which are coming on WhatsApp, but majority of them you have already covered. I think Pradeep had received one question. Pradeep, your turn. You're mute. Yeah. Sir, first of all, as always, huge compliments to the webinar, sir. The way you carry us through the webinar, it is really commendable. And sir, one question was coming to recently, people are asking because they are commuting via metro now. So sir, even though they are maintaining the precautions, now slowly people are are getting into that mode where they are believing that it is no, जैसे ठाकुर जी ने सवाल पूछा कि री-इन्फेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता, कई लोग ये बिलीव करने लगे कि मुझे एक बार हो गया है तो मुझे री-इन्फेक्शन नहीं हो सकता। पहले 30% ऑक्यूपेंसीज पे ऑफिसेज वर्क कर रहे थे, तो नाउ द नंबर्स हैव इंक्रीज, लोगों ने धीरे धीरे वो चेंज करना शुरू कर दिया है। तो नाउ what advice we can give to those people, or how those people can protect themselves who are traveling via metro? Like many people will be commuting from one end to the other end and going to the offices, and there again the offices are getting crowded once again. So what are the precautions they can take so that during this phase, because now unlock is happening, so a lot more chances to get infected is increasing. So what are the special precautions they can take? Yeah, definitely. Anyways, they'll be wearing the mask.
प्रदीप, इसमें मैं फिर दोबारा से वही री इन्फोर्स करना चाहता हूँ, SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क मास्क मास्क, मास्क इज नॉट ए बिग आस्क, मास्क 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 और सैनिटेशन। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि यस, मैं भी मानता हूँ कि इस समय आपको लाइवलीहुड भी कमाना जरूरी है, नौकरी पे जाना भी जरूरी है, पर एज फार एज पॉसिबल अगर हमारे मन में ये आ जाए कि मुझे इस समय रेस्टोरेंट्स में नहीं खाने जाना है, मुझे इस समय ऐसी क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना है, और अगर जाना है और अगर हम थोड़ा सा, मैं अपने लिए बिल्कुल सिंपल भाषा में कहता हूँ, मेरे अपने हॉस्पिटल में, भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल में, मैं एक भी वर्कर को, अपने हॉस्पिटल एम्प्लॉय को बिना N95 मास्क के नहीं घूमने देता। सबको N95 मास्क और साथ में फेस शील्ड दिया हुआ है, सो दैट अल्टीमेटली डिसिप्लिन रहे। सिमिलरली हर, अगर मान लो मैं दूसरी तरीके से प्रेरण करता हूँ, एक भी पेशेंट मेरी ओपीडी में आता है, मैं तो सुबह से लेकर शाम तक ओपीडी भी करता हूँ, ऑपरेशन भी करता हूँ, तो अगर एक भी पेशेंट आता है, और वो हम सब की आदत हो चुकी होती है, सर्जन्स की तो आदत थी कि मास्क लगाते थे, पर नॉन सर्जन्स की तो आदत नहीं थी ना, तो वो क्या करते हैं कि धीरे से ये इसको मास्क को नीचे उतारने की कोशिश करते हैं और फिर बोलने की कोशिश करते हैं। उसी समय मैं थोड़ा सा रफ हो जाता हूँ और उसको रफ होके क्लियर कट कहता हूँ कि आपको मास्क फैशन के लिए नहीं दिया है, आपको मास्क दिया है मेरी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए। प्लीज ये सीख जाओ कि मास्क पहनना लाजमी है, अपने नाक को, अपने मुंह को बंद कवर करना लाजमी है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप ओपीडी में से जाके बाहर बैठ सकते हैं, और बाहर जाके सिस्टर, मेरी जो ओपीडी की सिस्टर है, उनको मैंने कहा कि एक मास्क जो नीचे उतारता है उसको एक और मास्क दे दो, 2 मास्क पहन ले तो उससे। What I mean to say, we have to create that discipline. If we are able to create that discipline among ourselves, ये सभी ने देख लिया, इटली में क्यों जीत पाए, इटली में भी तो इतनी सारी डेथ्स हुई, मगर इटली में फिर भी जीत पाए, फिर भी इन्फेक्शन कंट्रोल हुआ, क्यों? क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन आ गया, सबको समझ आ गई कि अगर हम ये इतना इतना प्रिकॉशन लेंगे तो ठीक रहेंगे। तो हमें भी, हम सब का फर्ज है कि दूसरों को सिखाने से पहले खुद अपना ऑक्सीजन लगाएं, फिर दूसरों को ऑक्सीजन लगाएं, अपना मास्क 100% ठीक तरीके से पहने, गर्दन पे ना पहने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, वॉश हैंड्स वॉश बार बार करें, सैनिटाइज बार बार करें, सो दैट किसी को नुकसान ना करें और फैलने से रोक। Thank you, sir. Right, sir, right. Vinod ji, would you like to add anything? Sir, actually, you are really inspiring. Even today's session, even I really inspired by your trainer story, like really practical. Earlier, he was in Delhi, only 6 client, 7 client, but now he has changed himself, and now he has got, now he become global man now. Sure. So, and his income also become, I think, in dollar and all this thing now. So that's really inspiring to me. But one question keeps on coming, like there were 2-3 questions. One, whether excess use of sanitizer, because you mentioned sanitizer, like perhaps like people are using like while taking vegetables, पहले vegetable को sanitize करेंगे. Even I have seen the people, the mobile लेते हैं, mobile को भी sanitize करते हैं. So it's really going to mobiles, ultimate that damages the mobile and all this thing. But whether this causes the spread of the corona. नहीं, देखो This सिंपल, myth. या आई कैन अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन कि आपने सैनिटाइजर जो है कितने एक्सटेंट तक यूज करना है, राइट? तो उसमें आंसर ये है कि यस, पहली चीज में इस चीज को अंडरमाइन मत करो कि हाथ वॉश करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाथ वॉश करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैनिटाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। पर ये यस, यू आर राइट। और मैंने कई लोगों को देखा है कि अपना मोबाइल ही खराब कर लिया बार बार स्प्रे करके, वो अब काम ही करना बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटरप्रूफ नहीं था या जो भी था। तो कहने का सिर्फ मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त तो उसको सैनिटाइज करना, बट ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर हमने कहीं पे अपने मोबाइल फोन को रखा है, वो ऐसी सरफेस पे रख दिया है, तो यस डेफिनेटली अपने हाथ वॉश कर लेने चाहिए पानी से अच्छी तरह से, साबुन से अच्छी तरीके से, और अपने मोबाइल को अपने ही कंट्रोल में रखना चाहिए, रादर देन 1, 2, 3, 4 दुकान के अंदर या केमिस्ट की शॉप के अंदर या कहीं पे भी रखते चले जाएं, उसकी वजह से जो वायरल लोड पड़ा हुआ है उसको अंदर ले जाएं।
क्योंकि एक वायरस, मैं सिंपल भाषा में कहता हूँ कि एक वायरस भी अगर आपकी ओबेसिटी है, अगर आपको बीमारियां हैं, तो वो किलिंग हो सकता है। तो अगर आपने अपने आप को बचाना है तो उसके लिए आंसर यही है कि अपने हाथ अच्छी तरह से वॉश करें और बार बार मास्क को नीचे ऊपर मत करें, बार बार नाक को, आंखों को, मुंह को टच नहीं करें, उसी में ही जीत है। और ये जीत एक परमानेंट बन सकती है अगर हम इसको अपनी आदत में शुमार करें, आदत में डाल लें। बट यस, एक्सेसिव अल्कोहल लेने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोगों ने सैनिटाइजर पी भी ली है कि अल्कोहल ही सही। I think we have completed all the questions. Once again, on behalf of Walter Bushnell, on behalf of Ulhasnagar Chemist Association, sir, thank you so much Parveen sir that आपने हमारा invitation accept किया और आपने यहाँ motivation talk के लिए आप तैयार हुए. Thank you very much. It was a great treat, sir. Thank you very much Subhahi, and thank you Walter Bushnell for giving this opportunity. पर मैं ठाकुर साहब का भी डेफिनेटली थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने अपने सारे भाइयों को एक मंच पे ला के खड़ा किया, so that अल्टीमेटली आंसर बड़ा सिंपल है कि इस समय हम सब को सीखना है, हम सब को एक दूसरे के साथ खड़े रहना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए डिस्टेंट सोशलाइजिंग करनी है, डिस्टेंट सोशलाइजिंग करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने फैमिली का, अपने बच्चों का, सबका ध्यान रखना है। तो अगर हमारे अपने आप को हम डिसिप्लिन कर सकते हैं, उससे अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए और दूसरा मुझे लगता है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए, बड़ी ऑनेस्टली बोलता हूँ, अंदर से बोलता हूँ, तो उनके लिए इतनी सहानुभूति पब्लिक के दिमाग में नहीं है जितनी होनी चाहिए। Yes. है ना? तो उसके लिए और ज्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने आप को सेव करें। अगर एक पॉलिटिशियन बीमार भी हो जाते हैं तो उसके लिए इतने सारी न्यूज़पेपर और इतने सारे चैनल और इतने सारे करते हैं, और इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे हेल्थ केयर वर्कर्स, इतने सारे बेचारे शहीद हो चुके हैं, मगर उसके लिए कोई मेंशन नहीं है फ्रॉम द टॉप नॉच लीडर्स आल्सो। सो माय थिंकिंग इज दैट इट बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अस दैट हम अपने आपस में, चाहे वो वर्कर्स हों, सिस्टर्स हों, डॉक्टर्स हों, केमिस्ट शॉप्स हों, सब एक दूसरे को पॉजिटिव बनाए रखें, so that we are able to make it. Thank you very much. May God bless you all. Thank you. Thank you so much, sir, and thank you all the attendees who have joined us on Zoom and Facebook. Thank you. With this, we are ending this webinar. Thank you very much.